Hello friends, welcome back to the part 6 video of fluid mechanics. So in this video, I'll discuss about the streamline. After that I'll discuss about the path line, what is stream functions, equation of the streamline, the continuity equation, mass conservation of mass balance, that is a continuity equation I'll discuss in this part. So let's get started the streamline. So heading डालिए आप लोग ने streamline. Also basically a hypothetical line होती है. Streamline is a series of imaginary lines drawn in a flow field such that at any instant, at any point on a streamline, the tangent to the curve represent the velocity vector at that point, at that instant. So basically, for example, ये स्ट्रीम लाइन्स हमने ड्रॉ की हैं, तो किसी भी एक पॉइंट पे ये क्या देगी, एक वेलोसिटी वेक्टर देगी किसी एक इंस्टेंट पे. टू स्ट्रीम लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट. मोर देन वन वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट पॉसिबल. सिमिलरली अ सिंगल स्ट्रीम लाइन कैन नेवर क्रॉस इट सेल्फ. ठीक है. सो पाथ लाइन के बारे में डालिए, हेडिंग लगी पाथ लाइन. हियर द टाइम इज इनहेरेंट. Path line correspond to Lagrangian approach. It is the locus of point of a given identity particles. Two path line can intersect to each other, and a single path line can also intersect. When the flow is unsteady state, then what will happen? When the flow is unsteady state, then what will happen? The streamline path line both are different. When the flow is steady state, then it cannot cross other and itself also. ठीक है. So तीसरी heading डालिए streak line. It is a locus of ultimate location of all the particles at a particular instant of time which have passed through a fixed point or a single point. For example, जैसे क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप जैसे सिगरेट्स पीते हैं, सिगरेट्स का जो धुआं निकलता है किसी एक पॉइंट से, फिर वो ऐसे जैसे सिगरेट का अगर एग्जांपल ना लो तो जैसे अगरबत्ती हो गई तो उसका जो धुआं निकलेगा वो स्प्रेड होने लगता है. दिस इज एग्जांपल ऑफ स्ट्रीक लाइन. सो इट इज़ फॉर द अनस्टेडी स्टेट फ्लो. फॉर द स्टेडी स्टेट फ्लो, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन, ऑल थ्री आर आइडेंटिकल. वी कांट एबल टू कंपेयर व्हेन द फ्लो इज स्टेडी स्टेट. We can only compare when the flows are unsteady state. So equation of streamline, तो मैंने क्या किया था, कोई भी स्ट्रीम लाइन के थ्रू क्या है, किसी भी पॉइंट पे ये वेलोसिटी वेक्टर देता है, लेट्स से v. सो एज वी नो दैट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज वी नो दैट स्पीड विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या हो गया, डी एक्स अपॉन यू, डी वाई अपॉन वी, डी जेड अपॉन डब्ल्यू विच इज इक्वल्स टू डी टी. तो बेसिकली अगर मैं टू डायमेंशन की बात करता हूँ, डी एक्स अपॉन यू हो जाएगा, डी वाई अपॉन वी हो जाएगा. फॉर वन डायमेंशन के लिए डी एक्स अपॉन यू, इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर वन डायमेंशनल फ्लो. सो तो बेसिकली जो इक्वेशन हो जाएगी, डी एक्स अपॉन यू बराबर डी वाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डब्ल्यू. Streamline at any instant of the time is an imaginary line in the flow field so that the tangent to the curve at any point represents the direction of instantaneous velocity at that point. So this is all about the streamline, path line and streak line. This is one point is very very important for the steady state flow. The all three lines are identicals. So ये क्वेश्चन आया भी है और पूछा भी गया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So let's get started the continuity equation. So very very important equation. So heading लगा लीजिए law of conservation of mass और continuity equation. तो let's assume this is a fluid element. Over there this is x direction, this is y, this is z. The distance of this is delta x, this is delta y, this is delta z. So let's say this is a velocity in the x direction u. After that u plus del u upon del x dx. Change the velocity with x direction derivative.
तो बेसिकली होता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, रेट ऑफ मास इन ऑल डायरेक्शन माइनस रेट ऑफ मास आउट इन ऑल डायरेक्शन एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन, विच इज इक्वल टू क्या होता है, विच इज इक्वल टू रेट ऑफ मास एक्यूमुलेशन। ठीक है, सो रेट ऑफ मास इन क्या होएगा, रेट ऑफ मास इन, रेट ऑफ मास आउट, और रेट ऑफ एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन का मतलब क्या है, डेल अपॉन डेल टी इंटू, मतलब मास का एक्यूमुलेशन, कितना मास वहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ है। ठीक है, तो वो हमको बताना है। सो रेट ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, देखो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी विच इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ठीक है, तो डेंसिटी को तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और वॉल्यूम को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी इंटू क्या, वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी यूनिट्स देखूंगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, क्यू डेल एक्स डेल वाई, हाँ रेट ऑफ मास है ना मीटर पर सेकेंड, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर से मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। तो वो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, एक मीटर ये वाला मीटर कट गया, तो मतलब केजी पर सेकेंड यूनिट आ गई सीधे इसकी, केजी पर सेकेंड आ गई। तो ये हो क्या गया, ये हो तो रेट गया। तो वही मैं मतलब बताना चाह रहा हूँ कि इसको हम लोग सीख सकते हैं यू, क्योंकि एक्स डायरेक्शन हम लोग ले रहे हैं इसलिए, क्योंकि हम लोग एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं इसलिए डेल्टा जेड डेल्टा वाई इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, तो डेंसिटी को एज इट इज़ रखेंगे जो भी फ्लूइड की डेंसिटी है, और इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंटू डेल्टा जेड डेल्टा वाई, विच इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं रो यू डेल वाई डेल जेड एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ मास आउट निकालते हैं, रेट ऑफ मास आउट इन एक्स डायरेक्शन, जब मतलब फ्लूइड एलिमेंट को जब पास मतलब आउट कर लिया, तो रो यू प्लस डेल अपॉन डेल एक्स डी एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स रो यू डी एक्स या डेल्टा एक्स, डेल वाई इंटू डेल जेड, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली अगर मैं नेट इसका मैं निकालूंगा, नेट मास आउट कितना हो जाएगा, नेट मास आउट इन एक्स डायरेक्शन, तो वाई और जेड को मैं समराइज कर लूँगा। तो नेट मास आउट क्या हो जाएगा, इनपुट माइनस आउटपुट, इनपुट माइनस आउटपुट, इनपुट क्या था, रो यू डेल वाई डेल जेड था, आउटपुट क्या था, रो यू डेल वाई डेल जेड। मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, प्लस डेल अपॉन डेल एक्स रो यू डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हो गया। ये कट गए, बचा क्या, डेल अपॉन डेल एक्स रो यू डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये बच गया। सिमिलरली वाई और जेड डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स की जगह डेल अपॉन डेल वाई हो जाएगा, रो यू की जगह रो वी हो जाएगा, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, सॉरी डेल वाई होगा। इसी तरीके से डेल अपॉन डेल जेड हो जाएगा, खाली वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू हो जाती है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन वो क्या हो जाएगा,
रेट ऑफ एक्यूमुलेशन, रेट ऑफ एक्यूमुलेशन हो जाएगा डेल अपॉन डेल टी। मास को क्या लिख सकता हूँ मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेल एक्स डेल वाई टू डेल जेड। ये हो गया ना। डेरिवेशन पूरा क्लियरली है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था, रेट ऑफ मास इन माइनस रेट ऑफ मास आउट, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेट ऑफ एक्यूमुलेशन। तो रेट ऑफ मास इन ऑल डायरेक्शन, तो सिंपल है। देखो एक्स डायरेक्शन का हमारा क्या गया, एक्स डायरेक्शन का ये हो गया, वाई डायरेक्शन का ये हो गया, जेड डायरेक्शन का ये हो गया, ठीक है। देखो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड यहाँ भी कॉमन है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इन तीनों में कॉमन है। अगर मैं रेट ऑफ मास इन माइनस रेट ऑफ मास आउट, ठीक है, निकालूंगा तो बेसिकली ये हो जाएगा माइनस, अगर मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ तो डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो डब्लू विच इज इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल रो अपॉन डेल टी हो जाएगा, डेल रो अपॉन डेल टी हो जाएगा, बिकॉज डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड और कॉमन लेके कट जाएंगे। तो बेसिकली जो है मैं इसको लिख सकता हूँ डेल टी अपॉन डेल रो, डेल टी कहाँ से आ जा रहा, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल अपॉन डेल एक्स रो यू प्लस डेल अपॉन डेल वाई रो वी प्लस डेल अपॉन डेल जेड रो डब्लू इज इक्वल्स टू 0। So this is the most general continuity equation valid for all the cases। इसी में स्पेशल केस भी कुछ आ जाते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे क्या इसी इक्वेशंस को मैं इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, बेसिकली डेल रो अपॉन डेल टी प्लस इसको मैं जो पूरा हमारा डेल जो टोटल डेरिवेटिव वो डिफरेंशियल ऑपरेटर के जैसे कि जो वेक्टर में हम लोग ने पढ़ा था डेल ऑपरेटर की फॉर्म में भी मैं लिख सकता हूँ ना इसको, क्वेश्चन को। दिस इज द मोस्ट जनरल कंटिन्यूटी इक्वेशन दिस तो आप इसमें लिख सकते हैं वैलिड फॉर आइदर स्टडी और अनस्टडी फ्लो, और आइदर कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल फ्लो, दोनों के लिए वैलिड है, सबके लिए है, ठीक है। दिस इज मोस्ट जनरल इक्वेशन। इसी में क्या हो जाता है कि अगर बोल दिया जाता है हमसे, जैसे क्या बोल दिया जाता है हमसे, जैसे अगर मान लो इसी में हमसे बोल दिया जाता है कि मान लो फर्स्ट हमसे बोल दिया जाता है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, दूसरी कंडीशन बोल दी जाती है स्टडी स्टेट एंड स्टडी स्टेट एज वेल एज, बोल दो आप, लिख दो शायद एज वेल एज अनस्टडी स्टेट, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। तो मुझे ये पता है ये बेसिकली जो डेल वी वेक्टर है वो बराबर 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल के लिए लिक्विड डेंसिटी तो चेंज नहीं होगी टाइम के साथ, तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज वैलिड फॉर क्या, स्टडी स्टेट फ्लो ओनली। नहीं समझे, समझाता हूँ। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ आई डेल अपॉन डेल एक्स, डेल को प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड लिख सकता हूँ। वी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू वाई प्लस वी जे प्लस डब्लू के लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, आई की मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्लू अपॉन डेल जेड। ये क्वेश्चन जो हमारी आती है बराबर 0, ये वैलिड होती है किसके लिए, दिस इज वैलिड फॉर स्टडी स्टेट एंड अनस्टडी स्टेट ऑल्सो, और एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए,
Okay, this is all about the continuity equation. If you have any doubt, comment in the comment section. I make video for that also. ठीक है, आगे और भी हम लोग देखते हैं कुछ क्या हम लोग को देखना है. ठीक है, कुछ बेसिकली कुछ जो है ठीक है. तो so जैसे as you can see, this is a numerical. This numerical is very very important. क्या numerical है? The velocity field for the flow is given by vector v, which is equals to 5x plus 6y plus 7z I plus 6x 5y plus 9z j plus 3x 2y plus lambda z k, and rho varies as rho is equals to rho naught e की पावर माइनस 2t. इफ द मास इज कंजर्व, इन्होंने क्या बोल दिया, हिंट्स हमको दे दी, इस मास इज कंजर्व. अब मास कंजर्वेशन आता है कंटिन्यूटी इक्वेशन. मास कंजर्वेशन से हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन ड्राइव की थी. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेम्डा. तो हमें जनरल इक्वेशन याद है, डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल रो वी वेक्टर बराबर 0. तो डेल रो अपॉन डेल टी मैं यहाँ से अगर निकाल लूँ, जो -2 रो आ जाएगा. उसके बाद तो मैं क्या करूँ, उसके बाद हमको करना कुछ नहीं है. डेल यू अपॉन डेल एक्स आप निकाल लो, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, डेल यू अपॉन डेल जेड निकालो. इक्वेशंस आपको सब गिवन है. ठीक है, और आपको जो है -2 रो इसकी वैल्यू हो गई. डेल अपॉन डेल एक्स डेल रो यू, डेल अपॉन डेल वाई रो वी. इस फॉर्म में हम इक्वेशन को मतलब ओपन कर सकते हैं. अगर आपको इस फॉर्म में नहीं, रो कॉमन लेके आप इक्वेशन ये मतलब खोल दीजिए. तो हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये सब निकाली रखी, पुट कर दो, लेम्डा की वैल्यू -8 आ जाएगी. सिंपल था क्वेश्चन. देखो एक क्वेश्चन है, ये भी कुछ एग्जाम में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन. इफ यू बराबर लेम्डा एक्स वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर वाई वी इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3/4 वाई की पावर फोर. फाइंड क्या बोला है, फाइंड द पॉसिबल फ्लूइड फ्लो ऑफ लेम्डा. सो सिंपल है. फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड स्टेडी स्टेट फ्लो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई बराबर 0. सो लेम्डा बराबर 3. सिंपल. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अपने आप से कीजिए आप लोग, और कोई डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है. ठीक है, देखो एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इसी पे है. ये भी क्वेश्चन किस एग्जाम में आया हुआ है. इन स्टडी इनकम्प्रेसिबल फ्लो. देखो इन स्टडी बोल दिया गया, इनकम्प्रेसिबल बोल दिया गया. द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय. तो वेक्टर वी की फॉर्म में आपको एक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, जिससे हमको पता चला यू वी और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल जाएगी. इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द मास कंजर्वेशन. देखो पूरा बोल दिया है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन इसमें अप्लाई हो जाएगी. ये देखो आपको जो क्वेश्चंस की लाइन आप जो है वो अगर आपने डेरिवेशन सही से किया है और आपको स्टेटमेंट अगर याद है लास्ट वाला, और आपको डेरिवेशन अगर किया है, तो उसका मतलब आप समझ जाओगे कि मास कंजर्वेशन है, मतलब कंटिन्यूटी इक्वेशन लगेगी. तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी. सिंपल है. देखो हमको यू की वैल्यू 3x दी, वी की वैल्यू -py दी, पी की वैल्यू पूछी है, यू की वैल्यू इतनी दे दी. तो हमको बताया डेल वी बराबर 0, या डाइवर्जेंस ऑफ बी बोल सकते हो ना इसको. डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड बराबर 0. यू विल गेट द पी की वैल्यू 8. ठीक है, वेरी सिंपल. सो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है फ्लूइड डायनामिक्स स्टार्ट करेंगे. अब फ्लूइड मैकेनिक्स का जो कोर है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो जो फ्लूइड डायनामिक्स होती है उसका थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ. जैसे आप जो है थोड़ा सा मैं बेसिक मतलब आइडिया दे देता हूँ. ठीक है, जो फ्लूइड डायनामिक्स होती है, फ्लूइड डायनामिक्स, इन द फ्लूइड डायनामिक्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स. अभी तक क्या था, अभी तक हम लोग स्टडी कर रहे थे व्हेन द फ्लूइड एट रेस्ट
सो व्हाट आर द डिफरेंट फोर्स, मतलब क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे हैं जब फ्लूइड हमारा जो है मोशन नहीं कर रहा था। अब क्या है, अब फ्लूइड हमारा मोशन में होगा। ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ फ्लोइंग फ्लूइड, नॉट रेस्ट फ्लूइड। द फॉलोइंग मेन फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ फ्लूइड आर प्रेशर फोर्स, viscous or shear force, gravitational force, surface tension force, buoyancy force. These are the major forces are going to act on a fluid. So in this जो अगला पार्ट हम लोग ले रहे हैं उसमें हम लोग यूलर इक्वेशन डिस्कस करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन देखेंगे। सो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए बेसिक बर्नौली इक्वेशंस क्या होती है, बाकी हम लोग डिटेल से पूरा डेरिवेशन देखेंगे और बेस पे कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। टिल नाउ टेक केयर, बाय बाय।